Hi friends, very good morning. Vipund here. Okay, so in part 3 of solid states, we are going to learn about a magnetic properties. Okay, so what is magnetic properties? How the magnetic properties are produced? A magnetic property आ तो रही है, the magnetic property produce क्यों होगी? So we have to learn this. So we have to take an example of our solar system. सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम के बीच में सन है एंड अराउंड है देयर इज एन अर्थ सैटर्न जुपिटर वो लोग रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. सो बिटवीन द सन एंड द अर्थ देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. अब हमेशा याद रखना कि एटम इज द फॉर्म ऑफ अ सिमिलर वे ऑफ द सोलर सिस्टम. मीन्स क्या? तो कि उसमें सेंटर में न्यूक्लियस है एंड उसके आजू बाजू क्या रोटेट कर रहा है? तो उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है एंड व्हेनेवर देयर इज अ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus, magnetic properties are produced, and magnetic properties are only produced when the electron has some velocity, electron has some motion. So in this chapter we will learn about how the magnetic field is created, how many types of magnetic fields are there, and what is the use of the magnetic field. Okay, so every substance has some magnetic property associated with it. Okay, so the origin of this properties lies in an electron. Each electron of an atom like a tiny magnet. मतलब हमेशा 1 mole of molecule है ना आयन का, तो उसमें 6.022 into 10⁻³ एटम्स होते हैं एंड वो सभी एटम्स उसका मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करते हैं. मींस every small atom is a domain like structure. Okay, so its magnetic moment originates from two types of motion. First, its orbital motion around the nucleus, and second, its spin motion around the nucleus. Means हमेशा अर्थ सन के आजू बाजू भी रोटेट करता है एंड अर्थ अपनी ओन एक्सिस पे भी रोटेट करता है. व्हाट इट मींस? तो it has a two motions. One is rotational motion as well as the revolutionary motion. We can say it up. Okay. So electron is being a charged particle and undergoing this motions can be considered be a small loop of current which possesses a magnetic moment. मतलब electron having a displacement per unit time. So charge per unit time हमें पता है कि it is an electrical current. So हमेशा चार्ज जब रोटेट करता है उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है एंड वी आर नोइंग दैट इलेक्ट्रिक करंट जहां पर होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड तो होने ही वाला है. ठीक है. तो थस each electron has a permanent speed and an orbital magnetic moment associated with it. मतलब उस हमेशा कोई भी एटम होता है इलेक्ट्रॉन कभी स्टेबल नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन विल बी रोटेटिंग इन ईच एंड एवरी कंडीशन. उसको चाहे वो आप 1 डिग्री पे रख दो कि आप 50 डिग्री पे रख दो, इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा ही करेगा. Okay, so magnitude of magnetic moment is very small and is measured in Bohr magneton unit. Underline this thing कि what is mean by Bohr magneton unit. तो हम कैसे distance हम लोग जब मीटर में कैलकुलेट करते हैं ऐसे ही हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग बोर मैग्नेटन यूनिट में करते हैं एंड द कांस्टेंट फॉर बोर मैग्नेटिक मोमेंट इज 9.27 into 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओके, सो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर है ना, वो भी आपको याद रखना है. इट इज अ यूनिट फॉर बोर मैग्नेटिक. ओके, सो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मींस एक क्लास में स्टूडेंट है तो उस वो उस क्लास में ऐसा नहीं है कि सभी के सभी फर्स्ट रैंक लाएंगे, ऐसा भी नहीं है सभी के सभी लास्ट आएंगे, ऐसा भी नहीं है सभी के सभी सेंटर में आएंगे. कोई एथलीट होगा तो कोई फास्ट रनर होगा, कोई इंटेलिजेंट होगा तो कोई स्मार्ट होगा, कोई आईटी का पढ़ रहा होगा तो कोई कंप्यूटर में मास्टर्स होगा. सो ऐसा नहीं होता है कि सभी के पास सेम प्रॉपर्टी होती है. सम इज गुड एट studies, some are good at your behavior also. Okay, so on the basis of a magnetic property, substances can be classified into 5 categories. मतलब 5 कैटेगरी में हम लोग सब्सटेंस को डाल सकते हैं. Which are the 5 properties? So it is first property is paramagnetism, second is diamagnetism, third is ferromagnetism,
फोर्थ इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फिफ्थ इज फेरीमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म आर opposite of each other, while ferromagnetism and anti-ferromagnetism, नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज अ अपोजिट कैरेक्टर ऑफ ईच अदर। सो अब पैरामैग्नेटिज्म में जो याद रखना है उसका उल्टा डायमैग्नेटिज्म में लिखना है। ठीक है, सो नाउ वी आर लर्निंग अबाउट अ पैरामैग्नेटिज्म। ओके, सो paramagnetic substances are weakly attracted when they are placed in strong magnetic field। मतलब अब जितनी भी strong magnetic field में रख दो वो लोग वीकली अट्रैक्ट ही होंगे, ना वो रिपेल होते हैं ना वो अट्रैक्ट होते हैं वेरी स्ट्रांगली, बट वो एकदम वीकली अट्रैक्ट होते हैं। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि वो अट्रैक्शन हो रहा है, या मैग्नेट और आयन के कैसा अट्रैक्शन होता है ऐसा उसमें नहीं होता है। ठीक है, सो दे आर मैग्नेटाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन। मतलब हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसे, मींस इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो उसके सभी के सभी डोमेन्स विल बी आल्सो अरेंज्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रेस्पेक्टिवली। ओके, सो द लूज देयर मैग्नेटिज्म मींस जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तब क्या, क्योंकि when we are removing the magnetic field they will also lose the magnetism, मीन्स मैग्नेटिज्म उनका लूज हो जाता है, वापस वो लोग सिंपल सब्सटेंस बन जाते हैं। सो पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेसिकली आपको क्या याद रखना इसमें, सो बेसिकली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना, वो हमेशा वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना ही चाहिए। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो पैरामैग्नेटिक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो paramagnetic substance is due to the presence of one or more unpaired electron which are attracted towards the magnetic field. Now, some of the examples which we have to remember is O2, Cu plus 2, Fe plus 3, and chromium plus 3 are the example of such substance. So, paramagnetism is weakly attracted. They lose their properties of magnetic field if there is no magnetic field. And third, कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो देयर इज वन और मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंपलसरी होना ही चाहिए। एंड एग्जांपल लिखेंगे तो O2 Cu+2 Cr+3 एंड Fe+3 आयन हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो डायमैग्नेटिक क्या है, मैंने पहले ही बताया उल्टा होगा, मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वो लोग वीकली अट्रैक्ट करते हैं तो इसमें वीकली रिपल्शन आ जाएगा। ठीक है, सो diamagnetic substances are weakly repelled by a magnetic field. H2O, NaCl, benzene, which is C6H6, are example of such substance. Means they are weakly magnetized in a magnetic field in opposite direction. मतलब क्या कि magnetic field is from north to south, तो हमारा एट्रैक्शन होगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बिकॉज जब नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सब्सटेंस विल बी अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, so diamagnetism is shown by those substances in which all the electrons are paired or there is no unpaired electron। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि there is no unpaired electron, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि the all the pairs of electron are paired। अब सभी के सभी paired है तो unpaired electron तो होगा ही नहीं ना। ठीक है, so pairing of electron cancels their magnetic moment and they lose their magnetic character। मतलब कि सभी लोग एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विल बी जीरो। ओके, सो इट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब नाउ मैंने पहले ही बताया कि फेरोमैग्नेटिज्म का उल्टा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, तो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, सो अ फ्यू सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलियम and chromium oxide are attracted very strongly by the magnetic field। अब हमारा पहला ऐसा वर्ड आया strongly। अब strongly का मतलब इट इज लाइक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, क्या होता होगा उसमें, क्योंकि द बेसिक थिंग इज जब मैं एक आयरन नेल को मैग्नेट के बाजू में रखता हूं, के नजदीक रखता हूं, तो क्या होगा कि वो उसमें ना मैंने थ्रेड बांधा है ना मैंने उसको
कुछ मैं पुल कर रहा हूँ या पुश कर रहा हूँ मैग्नेट को, तो भी वो अट्रैक्ट होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, ठीक। So a few substances like iron, cobalt, nickel, gadolinium, chromium dioxide are very strongly attracted in the magnetic field. So this substance can be permanently magnetized in a solid state। मतलब ये ऐसे सब्सटेंस है जो हम लोग परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। मतलब इफ मैं थोड़े दिन के लिए इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं, तो इट विल बी वेरी वेरी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, और वो शायद तक परमानेंट के लिए भी वो हो सकता है। बट कोई कोई बार कैसा होता है कि इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो कोई कोई बार वो लूज हो जाती है। अब आपने एक्सपेरिमेंट तो किया होगा कि जब भी आप लोग के पास जो टॉय मैग्नेट आते थे, उसको मैं आयन के साथ मतलब ऐसा रब करता रहता हूँ एक ही डायरेक्शन में, तो कोई कोई बार क्या होता है कि वो छोटी आयरन की चीज होती है ना, वो अट्रैक्ट होने लगती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनन। हम लोग के पास वो टॉय का मैग्नेट आता था, उसको आयरन पे घिसते रहते हैं ना, तो वो भी जो हम लोग जिसके ऊपर घिस रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। सो the metals ions of the ferromagnetic substance are grouped together into small regions called as डोमेन। मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जो मैग्नेटिक फील्ड को बड़ा बना देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक डोमेन्स बोलेंगे। थर्स ईच डोमेन्स एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट in an unmagnetized piece of ferromagnetic substance. The domain are randomly oriented and their magnetic moment get cancelled। देखो, ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा नहीं है, उसके पहले उसके पास कुछ नहीं था मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा नहीं है। बट होता क्या है कि वो लोग हमेशा एक दूसरे के अपोजिट कैसे भी डायरेक्शन में खड़े होते हैं जब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है। बट जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसका मतलब कि सभी के सभी एक डायरेक्शन में अब यूनिटी हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब इसका मैं स्मॉल एग्जांपल देता हूं क्या, तो कि एक क्लास है, ठीक है, तो उसमें अभी टीचर प्रेजेंट नहीं है, पूरा स्कूल में प्रिंसिपल प्रेजेंट नहीं है, कोई टीचर प्रेजेंट। सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में बैठेंगे, कोई ये डायरेक्शन में बात कर रहा होगा, कोई इधर खेल रहा होगा, कोई पेन फाइटर खेल रहा होगा, सब कुछ खेल रहा होगा। बट जैसे ही पता चला कि प्रिंसिपल राउंड पे है, क्या होगा, सभी लोग अरेंज हो जाएंगे प्रॉपर प्लेस पे। सेम ऐसा फेरोमैग्नेटिज्म में होता है, सभी लोग एक साथ अरेंज हो जाएंगे, तो सबको क्या लगेगा कि दे आर वेरी ओबीडियंट। बट उसके पहले क्या था वो किसी को पता नहीं है, ठीक है। So when a substance is placed in a magnetic field, domains get oriented in the direction of the magnetic field and strong magnetic field is produced। अब जो एक बार हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेड के डायरेक्शन में हो गया, उसका मतलब कि अब इफ मैं मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देता हूं ना, तो भी क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड वो जो सब्सटेंस है उसमें रह जाएगा। ओके, सो this ordering of domain persists even when the magnetic field is removed and the ferromagnetic substance being a permanent magnet। मतलब हमेशा याद रखना कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस परमानेंट मैग्नेट बन सकता है, बाकी कोई टाइप का मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट बन सकता नहीं है इफ उसका मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दे तो भी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब द फाइनल प्रॉपर्टी इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म पूरा का पूरा उल्टा, उसमें सभी के सभी एक डायरेक्शन में थे, तो इसमें एक सीधा बैठेगा तो दूसरा उल्टा बैठ जाएगा। मतलब एक की मैग्नेटिक फील्ड आगे जाएगी तो एक की मैग्नेटिक फील्ड पीछे, उतने ही अमाउंट में। मतलब क्या होगा कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। सभी के सभी अपोजिट, मतलब क्लास में ओपिनियन देना है कि हमको आज पढ़ना है कि हमको आज नहीं पढ़ना है। इफ 10 20 बच्चे हैं, 10 बच्चे बोल रहा है कि आज पढ़ेंगे, 10 बच्चे बोल रहे हैं नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ डिसीजन कैसे ले पाएंगे हम लोग। तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बोलेंगे, ठीक है। सो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म substances like MnO showing antiferromagnetism have domain structure similar to the ferromagnetic substance, but their domains are oppositely oriented and cancel each other's magnetic moment। मतलब ये लोग एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो जाएंगे एंड वो लोग अपना मैग्नेटिक मोमेंट जीरो करके कैंसल ईच अदर करके जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो अब लास्ट टाइप है वो फेरी मैग्नेटिज्म है। एंड फेरी मैग्नेटिज्म में याद रखना कि कोई कोई बार इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि which of the substance below shows a ferry magnetism।
and the four name is given that Fe3O4, MgFeS2, MgFeSO4, then ZnFe2O4 ऐसा दिया होगा. तो हमेशा याद रखना मैग्नेटाइट and zinc and magnesium ferrites are the substance which shows a ferrimagnetism. Okay, so the last topic is ferrimagnetism. So ferrimagnetism is observed when the magnetic moment of the domain is a substance are aligned in parallel or anti-parallel direction in unequal number. मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि सभी के सभी एक डायरेक्शन में बैठ जाएंगे, कोई सीधा बैठेगा कोई उल्टा बैठेगा, बट इक्वल प्रपोर्शन में नहीं बैठेगा. मतलब क्या कि 10-20 बच्चे तो 14 बच्चे आगे के डायरेक्शन में बैठेंगे, जब बाकी 6 बच्चे पीछे के डायरेक्शन में. तो ऑब्वियस है ना कि 14 का ही टीचर मानेंगे, बिकॉज 14 बच्चे आगे बैठे हैं एंड 6 बच्चे पीछे, तो माइनॉरिटी हमेशा गायब हो जाएगा. उसका मतलब कि जितना होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें भी अनइक्वल नंबर में अरेंज होते हैं. सो दे आर वीकली अट्रैक्टेड, इसको भी अंडरलाइन कर लेना कि दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर्ड टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. मतलब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये अट्रैक्शन तो करते हैं बट फेरोमैग्नेटिक से वीकली अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, सो नाउ द एग्जांपल्स फॉर दिस आर Fe3O4. अब Fe3O4 आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, राइट? तो Fe3O4 आप जब 10th में आयरन ओर पढ़े होंगे, तो आयरन ओर में हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट एंड सिडराइट ऐसे 4 नाम थे. तो उसमें आयरन का जो सेकंड ओर था इट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटाइट वी कैन से. नाउ फेराइट्स, फेराइट्स भी दो तरह की होती है, मैग्नीशियम फेराइट एंड जिंक फेराइट. सो मैग्नीशियम फेराइट मींस Fe2O3 एंड ZnFe2O4 आर एग्जांपल्स ऑफ सच सब्सटेंस. अब इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज पेरीमैग्नेटिज्म को मैं हीट करता हूं ना, तो अब वो कैसा सब्सटेंस बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा. So this substance also lose ferrimagnetism on heating and become paramagnetic. मतलब क्या कि फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस कोई भी ले लो, उसको मैं हीट करूंगा वो सीधा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा. ठीक है, वो फेरीमैग्नेटिज्म में फेरीमैग्नेटिज्म नहीं रहेगा. तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बोलेंगे कि which of this following magnetism property when it is heated converts to paramagnetism. So you have to write ferrimagnetism and example will be also given to you. Okay, अब इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं. तो ये ना डायग्राम्स, अब ऐसा बोलोगे यार डायग्राम से तो अप डाउन दिया, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब बहुत है. ठीक है, सो हम लोग ऐसा देखते हैं ना, तो व्हाट वी हैव गिवन इज लाइक हमको बोल दिया इधर तो कि ये सभी के सभी एक डायरेक्शन में. अब हमको पहले ही पता है कि सभी लोग एक डायरेक्शन में बोलेंगे कि आज नहीं पढ़ना, तो मैम कुछ नहीं कर सकते. वो मैम भी बोल देंगे कि आज नहीं पढ़ेंगे. ऐसा ही कि इधर सभी के सभी एक डायरेक्शन है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिटी. स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिटी अब किसमें होती है? क्योंकि इट इज शोन इन अ फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी. ठीक है, अब उसके बाद वाला देखो, उसके बाद वाला एग्जांपल क्या दिया है आपका? तो क्या सभी लोग कैसे है? क्योंकि एक हाँ बोल रहा है तो दूसरा आपको ना बोल रहा है. ठीक है, उसका मतलब कि दिस कैंसल्स दिस कैंसल्स दिस कैंसल्स दिस. उसका मतलब कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया, मतलब कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे. एंड ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. एंड द लास्ट टॉपिक इज सी फिगर दैट उसमें सब लोग कोई हाँ बोल रहा है कोई ना बोल रहा है, बट सब लोग इक्वल नंबर में नहीं. दो ने हाँ बोला, दूसरे एक ने ना बोला, वापस दो ने हाँ बोला, तीसरे ने ना बोला. मतलब क्या? ये 4 लोग इन फेवर है एंड 2 लोग इन अपोजिशन में है, तो 2 लोग का फेवरेंस ज्यादा है, मतलब मेजोरिटी फेवर कर रहे हैं. उसका मतलब कि इसके पास बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, बट हाँ कम भी नहीं है या जीरो भी नहीं है. ठीक है, दो तो है ना. ठीक है, तो इसके लिए पेरीमैग्नेटिज्म के पास मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है. ठीक है, so if you have any doubts in chapter number 1 solid states, and we are going to derive also packing efficiency for BCC, FCC, HCP's cubic lattice, so it will be also given in part 5. Okay, so any doubts regarding chapter number 1 solid states, then comment us in comment box and like our channel also. Okay, have a good day.